Hello students, this is the continuation of the previous video of chapter The Freedom Movement of 1857 CE. So open your page number 54. Planning of the revolt and Mangal Pandey. It was planned to begin the revolt across the nation against the East India Company on 31st May 1857. Leaders like Nana Sahib Peshwa, Bahadur Shah Zafar, Kunnar Singh and the Nawab of Awadh has joined hands with Tatya Tope, an efficient military commander, Rango Bapuji, an accomplished planner, and Azimullah Khan, a lawyer and a journalist, to lead the revolt. Lotus and roti were the symbols to join the revolt for the civilians and the soldiers respectively. These symbols were circulated across the nation. Bards, Hindus and Muslim priests, awliyas and messengers played their part in spreading the word about the revolt. तो पूरी प्लानिंग की थी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। रिवॉल्ट पूरे देश में 31 मई 1857 को होगी। जो बड़े बड़े लीडर्स थे, जैसे कि हमने नाम देखे नाना साहब पेशवा, बहादुर शाह जफ़र, उन्होंने तात्या तोप से हाथ मिला दिया था। रंगा बापूजी जो एक काबिल मिलिट्री कमांडर थे, एक प्लानर थे अजीमुल्ला खान जो लॉयर थे, ताकि इस रिवॉल्ट को आगे बढ़ाया जा सके। जो लोग इस रिवॉल्ट में जुड़ना चाहते थे, इसको कैसे पता चले? तो इसके लिए रोटी और लोटस के सिंबल रखे गए थे। इन सिंबल्स को पूरे देश में सर्कुलेट किया जा रहा था। बार्ड्स, हिंदूज़, मुस्लिम प्रीट्स, ये सब लोगों ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाया रिवॉल्ट को वर्ड पहुंचाने के लिए। मंगल पांडे opposed the use of the cartridges greased with the fat of cows and pigs. As a result, the revolt began earlier than the fixed date. It disrupted the planning and the objectives of the revolt could not be achieved. तो मंगल पांडे ने कार्ट्रिजेस का उपयोग करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उसके ऊपर गाय और सुअर पिग का फैट यानी मांस लगा था। इसका नतीजा ये हुआ कि रिवॉल्ट अपने फिक्स टाइम से पहले ही चालू हो गया और पूरी प्लानिंग जो की थी वो बर्बाद हो गई, और जो मेन रिवॉल्ट का ऑब्जेक्टिव था वो पूरी तरह से वो लोग अचीव नहीं कर पाए। मंगल पांडे was born in a Brahmin couple in Nagwa village at Uttar Pradesh. He joined the British Army as a soldier at ₹7 as his salary. The Indian soldiers who had agreed to revolt wanted to wait till 31st May, whereas 26 years old Mangal Pandey could not wait till then. He refused to follow the orders of using the Enfield rifle and challenged the British officers. Sergeant Major Hewson ordered to arrest him, but Mangal Pandey sought him. तो मंगल पांडे का जन्म एक ब्राह्मण फैमिली में नागवा गांव में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के तौर पे ज्वाइन की थी। तब ब्रिटिश आर्मी सिपाही के तौर पे उन्होंने ज्वाइन किया था, तब उनकी सैलरी ₹7 थी। जो इंडियन सोल्जर्स थे जो रिवॉल्ट में ज्वाइन होना चाहते थे, वो 31 मई तक वेट करना चाहते थे, लेकिन मंगल पांडे जो 26 साल के थे, वो तब तक इंतज़ार नहीं कर पाए। उन्होंने एनफील्ड राइफ़ल यूज़ करने के लिए मना कर दिया और ब्रिटिश ऑफिसर्स को चैलेंज कर दिया। सर्जेंट मेजर हेंसन ने ऑर्डर निकाला कि मंगल पांडे को अरेस्ट किया जाए। तो मंगल पांडे ने मंगल पांडे ने उनको गोली मार दी। नाउ पेज नंबर 55. He defeated another British officer too.
The Indian soldiers refused to arrest Mangal Pandey, being a Brahmin. When he was cornered by the British soldiers, bleeding Mangal Pandey was taken to the hospital because the British wanted to get information about the plan of the revolt from them. इन्होंने एक और ब्रिटिश ऑफिसर्स को हरा दिया। इंडियन सोल्जर्स ने मंगल पांडे को अरेस्ट करने के लिए मना कर दिया क्योंकि वो ब्राह्मण थे। जब मंगल पांडे ब्रिटिश सोल्जर्स से घिर गए तो उन्होंने खुद को राइफल से गोली मार दी। खून से लथपथ मंगल पांडे को हॉस्पिटल ले जाया गया क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो उनसे ये रिवॉल्ट के प्लानिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे। The military court pretended to run a case against Mangal Pandey on 6th April 1857. The entire proceeding was in English. He was sentenced to death at the end, but did not divulge any information regarding the revolt to the British. That is how our patriots were. He was hanged at 5:30 a.m. on 8th April, and that's how he became the first martyr of the revolt of 1857. तो मिलिट्री कोर्ट ने कहा कि मंगल पांडे के खिलाफ केस चलाया जाए 6 अप्रैल 1857 को। पूरे कोर्ट का केस इंग्लिश में चला। उनको अंत में फांसी हो गई, लेकिन उन्होंने एक भी इंफॉर्मेशन ब्रिटिशर्स को नहीं बताई कि किस तरह रिवोल्ट होने जा रहा है। ऐसे थे हमारे देशभक्त। मंगल पांडे को 8 अप्रैल को सुबह 5:30 बजे फांसी दी गई। इस तरह से वो 1857 रिवोल्ट के पहले शहीद बने। नाउ टर्न योर पेज नंबर 56। Spread of the revolt and its leader, Delhi and Bahadur Shah Zafar. The soldiers reached Delhi from Meerut in the morning on 11th May. They could capture Delhi with the help of the Indian soldiers present there. They convinced the 80-year-old Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar to accept the leadership of the revolt. This news infused a new life in the revolt and many regions of India joined the revolt. तो सोल्जर्स 11 मई सुबह दिल्ली से मेरठ पहुंच गए। उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। किसकी मदद से? इंडियन सोल्जर्स की मदद से। उन्होंने 80 साल के मुग़ल एम्परर बहादुर शाह थे, उनको मना लिया कि आप रिवॉल्ट की लीडरशिप ले लो। ये खबर फैलने से रिवॉल्ट में नई जान आ गई और इंडियन के कई क्षेत्रों ने रिवॉल्ट में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। तो नेक्स्ट वॉज कानपुर में नाना साहेब। कानपुर broke into the revolt on 4th June 1857 and Nana Sahib Peshwa was asked to assume the leadership of this revolt. However, they had to surrender to the Britishers following an acute shortage of food and water due to a 22nd day long siege. तो कानपुर में रिवॉल्ट 4 जून 1857 को हुई। नाना साहेब पेशवा को रिवॉल्ट की लीडरशिप करने के लिए कहा गया, लेकिन इन लोगों को ब्रिटिशर्स के आगे सरेंडर करना पड़ा क्योंकि खाना और पानी की कमी हो गई थी 22 दिनों से। बिहार एंड कुंवर सिंह। पटना एंड जगदीशपुर were the main centers of the revolt in Bihar. Kanwar Singh, a 70-year-old landlord, was the leader of the revolt. He fought bravely against the Britishers. During a battle, he got shot in his arm. To stop the poison from spreading into his body, he chopped his hand off from the elbow and offered it to River Ganga. He freed Jagdishpur
from the British control before he died. तो बिहार के मेन सेंटर थे पटना और जगदीशपुर। 70 साल के कन्वर सिंह जो एक ज़मींदार थे वो रिवॉल्ट के लीडर बने। उन्होंने बहादुरी से ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई करी और युद्ध के दौरान उनकी बाहें आम में गोली लग गई। गोली का जहर बॉडी के अंदर फैल न जाए इसीलिए उन्होंने खुद ही अपना हाथ एल्बो से काट डाला और गंगा नदी में बहा दिया। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले जगदीशपुर को ब्रिटिश के कंट्रोल से छुड़ा लिया था। नाउ पेज नंबर 57। झांसी and the great warrior Lakshmibai. The Queen of Jhansi Lakshmibai was a great warrior. The Britishers did not accept her adopted son as the heir to the throne. This is the reason for her joining the revolt. She was one of the most skillful leaders of the revolt. She had also prepared an army of women to fight against the British. They fought bravely against the British. According to the British officials, Queen Lakshmibai was one of the greatest women leaders in the revolt of 1857. झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक बहुत बड़ी योद्धा थी। ब्रिटिशर्स उनका गोद लिया हुआ बेटे को राजगद्दी पर बैठने को मना कर रहे थे और इसी वजह से लक्ष्मीबाई ने रिवॉल्ट में हिस्सा लिया। ये रिवॉल्ट की सबसे काबिल लीडर थी। उन्होंने एक लेडीज़ की सेना तैयार की थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए और काफ़ी बहादुरी से ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो लोग लड़े। ब्रिटिश ऑफिसर्स के अनुसार रानी लक्ष्मीबाई एक महान रिवॉल्टर थी जो 1857 में शामिल हुई। A brave commander, Tatya Tope. Nana Sahib Peshwa had made Tatya Tope the commander of the army at Kanpur. Soon he became his trusted commander. He skillfully fought to free Kanpur, playing the role of commander for the first time in his life. For the next 2 years, he played a major role in the revolt across the country. No one in his time had fought as many battles as he did. तो नाना साहेब पेशवा ने तात्या टोपे को कानपुर में आर्मी का कमांडर बनाया और बहुत जल्दी वो विश्वसनीय कमांडर, फेथफुल, ट्रस्टवर्दी कमांडर बन गए। उन्होंने बहुत कुशल तरीके से कानपुर को आज़ाद कराया और ज़िंदगी में पहली बार कमांडर का रोल प्ले किया और अगले 2 सालों तक उन्होंने बहुत ख़ास रोल प्ले किया रिवॉल्ट में जो पूरे देश में हो रहा था। उस वक्त इनसे ज़्यादा किसी ने भी लड़ाइयाँ लड़ी नहीं होगी। Soldiers from different parts of India had joined the revolt. From North India, Bareilly, Banaras, Allahabad, Agra, Azamgarh and Gorakhpur had joined. तो उस समय अलग अलग भागों से सैनिकों ने ये रिवॉल्ट ज्वाइन किया था। तो नॉर्थ इंडिया में से बरेली, बनारस, इलाहाबाद, आगरा, आजमगढ़ और गोरखपुर ने, फिर जो सेंट्रल इंडिया था उसमें से अजमेर, नशीराबाद एंड आबू फ्रॉम राजपूताना एंड ग्वालियर, मंदसौर, इंदौर एंड धार फ्रॉम सेंट्रल पार्ट हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द रिवॉल्ट एंड सतारा, कोल्हापुर, Savantwadi, Nargad, Dharwad, etc. They became active in south. However, these centers were scattered. लेकिन ये सब लोगों ने ज्वाइन किया रिवॉल्ट, लेकिन
जुड़ते लगे, लेकिन ये सेंटर्स बाद में बिखर गए। स्कैटर्ड यानी ये सेंटर्स बाद में सब बिखर गए, सब जगह से सब एक हुए। नॉर्थ से, राजपूताना ग्वालियर से, सेंट्रल से, साउथ से, लेकिन बाद में ये सब लोग बिखर गए। सो नाउ स्टूडेंट्स, the rest of the chapter will continue in the next video.